So everybody, we are doing acid, bases and salt, and yesterday we learned that what is acid, the characteristic of acid. The acids are corrosive in nature. It gives hydronium ion, that is H plus ion in the solution, in water solution, and it is corrosive in nature, that I already have said, and it is bitter in taste. And few examples are like citric acid, tartaric acid, lactic acid. Those are which are found in plants or animals. They are organic acid, and which are found in the earth crust or made in the lab is called mineral acid. That we have done. Now, mineral acids are acids which are prepared from the minerals found in the earth crust में जो mineral होता है उससे मिलता है. जबकि organic acid, formic acid क्या है? That is found in the stem of the bee or for nettle. Strong and weak acid हम लोग पढ़े थे कि strong acid को टेस्ट बिल्कुल भी टच भी नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, because it may harm you, it may give you injury, burn हो सकता है तुम्हारा. तो weak acid are edible, मतलब उसको तुम लोग टच को कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन how to distinguish whether the acid is strong or weak, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर. Indicators can be synthetic or natural. Synthetic or natural. तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले let's come to the what is there on the screen, that is dilute acid. Dilute acid is simply the acid in which the content of water is more. जिसमें कंटेंट ज़्यादा होगा पानी का, वो होगा डाइल्यूट एसिड. whereas जिसमें कंटेंट एसिड का ज़्यादा होगा उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. एक चीज़ और मैं बताऊँ बेसिस शुरू करने से पहले कि H2SO4 is called the king of chemical, and while doing mixing, अगर dilute करना है ना, if you want to dilute hydrochloric acid, never ever mix pour water into the acid. जो concentrated acid होता है उसमें पानी नहीं डालना है. मतलब never ever put water into the acid because it gives a very violent reaction. ये exothermic reaction होता है. exothermic reaction में तो खूब अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है. अब जैसे कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि पूरी छन रहा होता है, पूरी छन रहा है, उसमें अगर पानी डाला जाता है तो व्हाट हैपन्स, पूरा तेल ऊपर की तरफ वो चलता है. तो उससे क्या होगा? इंजरी हो सकता है, जल सकता है. इसीलिए जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो एसिड को पानी में मिलाया जाता है. अगर पानी में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि पानी जो ठंडा है वो क्या करता है कि जैसे ही उसमें डाला जाता है जो हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करना शुरू करता है. जो रिएक्शन जो होता है उसमें जब हीट रिलीज होता है तो पानी में जो पानी में है ना उसको वो कूल डाउन कर देता है, मतलब उसको उतना वायलेंट नहीं होने देता है. जबकि अगर पानी डाला जाएगा एसिड में तो उसमें तो पानी का कंटेंट कम है, एसिड ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन करेगा. इट विल गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हीट. सबसे ज़्यादा तो हीट निकलेगा जिससे तुम्हें इंजरी हो सकता है. यू नेवर एवर ऐड water to acid. It should be reverse, acid to the water. Now let's move to the next part, that is bases. Bases again are corrosive in nature. साबुन जो है या फिर जो डिटर्जेंट हम लोग यूज़ करते हैं, कोलिन वगैरह यूज़ करते हैं, और टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, they all contain bases. So bases are soapy in feel, चिकना चिकना रहता है. और अगेन इट इज़ corrosive in nature. ये भी स्ट्रॉन्ग और वीक होता है. वीक बेसिस आर यूज्ड एज खाने पीने के उसमें जो सोडा वगैरह होता है, केक वगैरह में डाला जाता है, दैट इज बेस. वेरेज अगर तुम्हें ज़्यादा एसिडिटी वगैरह हो रही है तो इनो वगैरह जो खाते हो, दैट इज डाइजिन वगैरह, दैट इज बेस विच न्यूट्रलाइजेज द एसिड प्रोड्यूस्ड इन योर स्टमक. So bases, alkali, we have already discussed that alkalis are soluble in water, whereas bases are not soluble. All the alkalis are bases, but all the bases are not alkali. That we have discussed yesterday. Indicators, we have discussed that indicators, because we are not supposed to touch each and every substance that we find and distinguish whether it is acidic or basic. So in order to test it, for our safety, we use different kind of indicator like organic. This is the natural indicator. Natural indicator में क्या हो जाएगा? जैसे हल्दी हो गया, turmeric, this
दिस रेड कैबेज, हिबिस्कस, लिटमस जो कि लाइकेन प्लांट से आता है, दैट दोज आर नेचुरल इंडिकेटर जो कि अपना कलर चेंज करता है डिफरेंट मीडियम में, एसिडिक और बेसिक मीडियम में उसका कलर चेंज होता है. एंड देयर आर सिंथेटिक इंडिकेटर लाइक फिनोप्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज जिसका कलर चेंज करके बताता है कि वेदर द सब्सटेंस द कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक. These are to identify. Okay, litmus indicator we have done. China rose and indicator. Now salts. Salts are the product of acid-base reaction. That is neutralization reaction. में क्या होता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है. सॉल्ट कैन बी एसिडिक और बेसिक अगर डिपेंडिंग ऑन वेदर द acid is weak or strong or the base is weak or strong, depends on that. So in this example, this is the most common example that you are watching on this smart board. कि hydrochloric acid or this is sodium hydroxide. This is strong acid and this is strong base. न्यूट्रल सॉल्ट. स्ट्रॉन्ग हुआ तो दोनों का दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. जबकि अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये एसिड होता है, यहाँ पर हम लोग वीक बेस रख दें जैसे सोडियम लाइक सोडियम एसिटेट रख दें तो सोडियम एसिटिक एसिड रख दें. एसिटिक एसिड रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड क्या है? वीक बेस है. वीक बेस है तभी तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं. तो कंज्यूम करते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट. सॉल्ट बनना ही बनना है, सॉल्ट और वाटर बनना ही बनना है, लेकिन क्या बनेगा कि एसिडिक सॉल्ट बनेगा. राइट. अब हम लोग पढ़े neutralization and formation of salt that we did yesterday, that strong acid, strong base, the same thing. Now activity, this one neutralization. These are the examples of neutralization reaction that you see that these two are strong base. ये strong base है और ये तीनों का तीनों strong acid है. ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है. इस केस में जो बन रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट वो कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा. क्यों एसिडिक सॉल्ट होगा? क्योंकि ये वीक बेस है. दिस इज वीक बेस. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस वेयर एज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड. अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो उसका जो सॉल्ट बनेगा उसमें किसका कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा? एसिड का कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा. वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा. Always remember, whenever you are writing a chemical equation, must balance it. Balancing of equation means number of atoms to the left side must be equal to the number of atoms to the right side. So these naming of salts, अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड से सॉल्ट बन रहा है तो सल्फाइड होगा, नाइट्रिक एसिड से होगा तो नाइट्रेट होगा. दिस वी हैव डन यस्टरडे. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट वो हम लोग ने डिस्कस किया था कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. दिस वाज द एक्टिविटी इन विच इट इज शोइंग. अगर ये पानी हटा दें, अगर ये वाला पानी हम लोग नीचे सॉल्ट वाटर के इसको हटा दें तो क्या हो जाएगा? नीचे एयर आ जाएगा, खाली हो जाएगा. मतलब यहाँ पर एयर है. एंड यू नो दैट एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई इन विंटर हम लोग क्या रजाई ओढ़ते क्या करते हैं? वो एयर जो जितना नया रजाई होता है तो नया रजाई में उसको धुन दिया जाता है तो उसमें क्या होता है ना, वो एयर कंटेंट बढ़ जाता है. मतलब वो फूल जाता है. जो पुराना रजाई वो थोड़ा पचका हुआ रहता है, मतलब उसमें एयर कम होता है. लेकिन उसी को नया कर दिया जाता है धुन करके. जो रजाई फ्लफी रहता है. फ्लफी मीन्स उसमें एयर जाता है. एयर ज़्यादा है इसका मतलब वो तुम्हारा एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. तो उसमें से जब तुम रजाई ओढ़ के रहो तो तुम्हारा जो बॉडी का हीट है वो स्केप नहीं करेगा और बाहर जो ठंडक है वो इन नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर एक इंसुलेशन हो जाए. तो इसी तरह से अगर यहाँ पर तुम पानी हटा दें, इफ़ वी रिमूव द वाटर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर खाली एयर हो जाएगा. एयर हो जाएगा तो इवन मतलब यहाँ पर लग रहा है कि हाँ सर्किट हम लोग कम्प्लीट कर दें, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है, एयर है. तो क्या होगा? ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें अगर सिर्फ सादा नमक भर देते हैं, मतलब ये जो सीधा वाइट कलर का जो क्रिस्टलाइन नमक होता है घर में उसको भर दें तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि सॉल्ट इन सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी.
कौन सा करेगा? जब वो मोल्टन स्टेट में होगा या फिर वो एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर में घुला हुआ होगा, तभी ये एक मीडियम मतलब एक रास्ता मिलना चाहिए ना चलने के लिए। अगर हवा है तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर पानी है तो उसमें उसको रास्ता मिल गया कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नाउ classification that just we have done, the natural salt acid, strong, neutral, strong acid, weak base, acidic, weak base, strong base and weak acid, that is basic. Now neutral salt, we have done this, तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके। Now this is the activity, लिटमस पेपर की स्ट्रिप एक एक करके अगर बूंद डाला जाए तो कैसे वो चेंज होता है कलर। एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वेपर, कई बार हम लोग कर लिए। अल्युमिनियम क्लोराइड, दिस वुड बी Cl3, अल्युमिनियम AlCl is an acidic salt as it is formed by reaction of strong acid and weak base। जैसे MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी कौन सा सॉल्ट बना था? एसिडिक सॉल्ट बना था। उसी तरह से अल्युमिनियम क्लोराइड भी जो बनेगा, अल्युमिनियम क्लोराइड भी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि सॉल्ट, क्लोरीन के सॉल्ट को बोलेंगे क्या? क्लोराइड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट को बोलेंगे क्लोराइड। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? क्लोराइड बन रहा है। क्लोरीन है, क्लोराइड बन, जैसे सोडियम क्लोराइड, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्युमिनियम क्लोराइड बना, वो किसके कॉम्बिनेशन से? अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वीक बेस है। अब ये बताओ कि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है कि बेस है? अल्कली है कि बेस है? ये क्या हो जाएगा? बेस, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होगा पानी में, तो दिस विल बी बेस नॉट अल्कली। तो वो कौन सा अल्कली होगा? ये हो गया अल्कली एंड ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो क्योंकि जो वीक है क्या बनेगा? Strong, this will be acidic salt. This was the experiment with us for the reaction of weak acid and a strong base or basic salt. Solution of a basic salt in water is basic. अगर अच्छा ये भी बात है कि अगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है? तो अगेन अगर एसिडिक सॉल्ट है और बेसिक सॉल्ट को टेस्ट करने के लिए हम लोग फिर से इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर विल टेल बाय चेंजिंग इट्स कलर। अगर लिटमस पेपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एसिडिक सॉल्ट में लिटमस पेपर को डाल रहे हैं, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू टू रेड। सिमिलरली अगर हम लोग बेसिक सॉल्ट में डाल रहे हैं, यानी जिसमें बेस का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड टू ब्लू। नाउ दिस इज, देख लो, दिस इज पेट्री डिश, इसको बोला जाता है पेट्री डिश। लैब में देख कभी चलना हो, एक छोटा सा शीशे की कटोरी कैसे होती है, दैट इज पेट्री डिश। और इसमें कलर चेंज करके बताया गया कि वेदर द सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर। Now something to know, let's do the question answers quickly. Acids which are present in plants and animals are called organic acid. Bases taste bitter and have a soapy feeling. Acid turns the color of blue litmus paper to red. Take out your book and you may fill up this. The products of neutralization reactions are salt and water. Salts of nitric acid are named as nitrate. सारा लिस्ट है, all the salts, तो कौन से एसिड का क्या सॉल्ट बनेगा सारा वहाँ पर लिस्ट है, you find it. Sodium acetate is basic salt formed by reaction of acetic acid and sodium hydroxide. One thing, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं NaCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम एसिटेट के केस में Na बगल इस साइड लिखा हुआ, जबकि हम लोग कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव आयन पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयन बाद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सोडियम हम लोग उस तरफ लिखते हैं, ये पॉजिटिव आयन है, फिर भी हम लोग उस तरफ लिखते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना, जो हाइड्रोजन डिसोसिएट करता है वो इस साइड वाला होता है, इसलिए हम लोग इस तरह से, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग। लेमन में क्या मिलता है, वी गेट साइट्रिक एसिड, टमारिन में टार्टरिक एसिड, वाइनेगर में एसिटिक एसिड, रेड एंड्स में फॉर्मिक एसिड जो स्टिंग होता है उसमें, साउर मिल्क में लैक्टिक एसिड एंड गुआवा में ऑक्सैलिक एसिड। All these are weak acids. Now bases are
There are options. You have to choose the correct option. Bases have bitter taste and fruity taste. This one is very easy. An example of natural indicator is the methyl orange, phenolphthalein ink. All these are man-made. मतलब सिंथेटिक है, वो ऐसा नहीं है कि नेचर में मिल रहा है, ये बनाया गया। जबकि लिटमस पेपर है लाइकेन से आता है, वो नेचर में है, टाइप ऑफ प्लांट से ये लिटमस पेपर बन रहा है। दिस इज नेचुरल इंडिकेटर। Now an acid that contributes to the sour taste of some foods are citric acid. अब देख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ऑल दीज आर मिनरल एसिड। तो उसको हम लोग कितने नहीं लगाएंगे, दैट विल बी रॉन्ग। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये दोनों तो हो गए हमारा ऑर्गेनिक एसिड, ये मिनरल एसिड है लेकिन ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, नाइट्रिक एसिड। Substances produced through chemical reaction between acid and bases are known as salts. Antacids, indicator, alkalis. Antacids क्या होता है? Antacids वही होता है जब तुम्हारे पेट में जलन होती है, मतलब तुम्हारा एसिडिटी हो जाता है, तो जो तुम दवाई खाते हो, डाइजिन या इनो या डाइजिन वाला जो सिरप खाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो तुम कंज्यूम करते हो, दैट इज एंटासिड। एंटासिड मतलब एसिडिटी को खत्म करने के लिए दवाई होता है, दैट इज एंटासिड। Alkalis soluble in base, soluble in water. Indicators जो बताता है कि whether the substance is acidic or basic. Now the general taste of acid and bases is respectively. Now see here, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि respectively पहले acid का बताना है कि base का बताना है। तो acid का होता है sour, and bitter का basis का होता है bitter। तो वो sequence होना चाहिए sour and bitter। तो देख लो यहाँ पर sour and bitter का एक option दिया हुआ है, that will be the correct answer. Now what are the mineral acid? This is the D part. What are mineral acid? Acid which are prepared from minerals are called, minerals कहाँ मिलता है, minerals are crust पर मिलता है, वहाँ से जो mineral मिलता है उससे जो बनता है that is mineral acid. Hydrochloric acid, nitric acid, H2SO4, ये सारे जो क्या है mineral acid है। Now give two examples each of mineral acid and organic acid. अब organic mineral acid का होगा sulfuric acid, nitric acid, एकदम याद हो जाएगा तुम लोग को, you will learn it in due course of time. Citric acid and acetic acid. Okay. Now और ये जानो कि बहुत लंबा फॉर्मूला है, बहुत स्ट्रेस अभी नहीं लेने का। अगर बस citric acid भी लिखोगे तो you will get full marks. Name any two substance that can be used as indicator. कोई भी दो substance बता दो भाई, बहुत सारे हैं, litmus paper, turmeric are two substances that can be used as indicator. इस पर तुम लोग red caviar, hibiscus flower, china gold ये सब भी लिख सकते हो। That is up to you what you choose. Now write the meaning of the term neutralization reaction. Neutral करना, neutral मतलब cancel out करना, मतलब neutral, ना इधर ना उधर, बीच में एकदम। तो a reaction in which acid reacts with base to form salt and water is called neutralization reaction. Here you can put up one example. एक salt वाला जो common salt वाला है वही कर देना भी, hydrochloric acid plus sodium hydroxide results in hydrochloric acid. This is sodium chloride, that is salt plus water. वो एक एग्जाम्पल यहाँ पर डाल देना सही रहेगा। Now give any two properties of salt. Salts are formed after the neutralization reaction. और उसका क्या होता है? Bad conductor of electricity in the solid state, but conduct electricity in molten state. Classify the following salts as natural acidic or base. Now see here, you have to learn the different strong acid and strong base. तभी तुम लोग को पता चलेगा कि जो सॉल्ट बन रहा है whether it is acidic or basic. You have to learn the nature of different acids and base, whether those are weak or strong. तभी पता चलेगा कि जो अगर strong acid का weak base के साथ हो रहा है और तुम्हें पता ही नहीं रहेगा, if you are not aware कि whether the substance is, the compound is acidic, सबसे पहले तो you have to recognize कि वो acid है या base है। एसिड होगा तो उसमें H+ होगा, इजी। एसिड है तो उसमें H+ होगा क्योंकि हाइड्रोजन ही रिलीज होता है, डिसोसिएट होता है। और बेस होगा तो उसमें OH- होगा, OH डिसोसिएट होगा। तो जिसमें OH होगा वो बेस होगा, ठीक है। अब है कि NaOH भी बेस है और CaOH का होल भी बेस है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। अब कैसे पता चलेगा भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा बेस है? तो अभी तुम लोग को याद करना पड़ेगा। कि अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ
कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है तो क्योंकि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है तो उसका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा. तो यू हैव टू लर्न. Now see here, salts are neutral, acidic or basic. Also write their name. This is sodium phosphate. Sodium phosphate is neutral salt. Potassium carbonate. देखो अब यहाँ पर फॉस्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, जहाँ ये सारा चीज होगा वो हो जाएगा सॉल्ट में आ जाएगा. अब है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ये बेसिक सॉल्ट होगा. देखो क्योंकि KOH से बना होगा. KOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. तो इससे जो बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा. अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इज एसिडिक सॉल्ट क्योंकि ये किससे बन रहा है? NO3. NO3 कहाँ से आएगा? नाइट्रिक एसिड से आएगा. नाइट्रिक एसिड कैसा सॉल्ट एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो इसका जो सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट होगा. इसको टेस्ट कैसे करेंगे? बाय लिटमस पेपर. लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि भाई एसिडिक है और बेसिक है और न्यूट्रल है. नाउ bases, but all bases are not alkali. Justify we have done number of times. We solubility check कर लिया जाए तो soluble है वो alkali है, जो non soluble है that are bases. Alkalis are the bases which dissolves in water, but all bases cannot dissolve in water. Hence all alkalis are base, but all bases are not alkali क्योंकि वो dissolve नहीं होगा. Now suggest an activity that can help one to decide whether this kind of whether a given solution is acidic or basic in nature. तो वो solution में you can do it. There are activities in the textbook. Take a solution and litmus paper. Dip the litmus paper in the solution. If the color of the litmus paper changes to red, then the solution is acidic. And when the color changes to blue, then the solution is basic. That was now write the chemical equation of the following reaction. Dear students, always remember that you have to learn how to make chemical formula, how to balance the equation. Then only you will be able to write this chemical equation of acid and bases. Like calcium hydroxide reacts with nitric acid. क्या हो गया? And CaOH का whole 2 plus 2 HNO2 और बैलेंस भी करना है. इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना? कैल्शियम नाइट्रेट. क्या नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट क्या बनता है? नाइट्रेट बनता है. प्लस H2O तो बनना ही है और उसके बाद बैलेंस कर देना है इक्वेशन को. एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एसिडिक एसिड का फॉर्मूला अभी तक तुम लोगों को याद हो गया होगा. एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बना? कैल्शियम एसीटेट और पानी तो हो गई. हर बार पानी तो होना ही होना है और इस तरह पे कंपाउंड बनेगा जो कि सॉल्ट होगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद हाइड्रोक्साइड. आगे देखो ये तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल न्यूट्रल सॉल्ट जो हम लोग सादा नमक कॉमन सॉल्ट है वही वाला. अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा वीक बेस और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड. इसका सॉल्ट बन गया, टेस्ट हो जाएगा. Now see the difference between neutral, acidic and basic salt. One example of each. Neutral salt formed after reacting strong acid, strong base, neutral. Strong base, weak acid, acidic. Strong base, weak acid, basic. Simple. And you can give away the examples as well. जैसे कि इसमें example दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और इसमें अमोनियम सल्फेट और इसमें सोडियम एसिटेट. Basic salt, sodium acetate and ammonium sulfate, acidic salt. Now describe the activity. Show that the solution of salts in water can conduct electricity. अब वही वाला जो एक एक्टिविटी 4 या 5 था जिसमें सॉल्ट वाटर डाल करके बल्ब को ग्लो कराया जा रहा था. That activity can be written here. Take a beaker and fill it half with water. Dissolve some common salt solution in this water. Connect 2 graphite rods with the 2 terminals of a battery with a 0-watt LED bulb in between, as shown in the figure. Figure वो वाला देख लेना. Activity 5 वाला. Now dip these graphite rods in the solution of sodium chloride. The bulb starts glowing, indicating the flow of electric current. This shows that a solution of sodium chloride can
conduct electricity. Thank you.